Hello everyone, welcome to Mindspan Education. This will be our fourth video on this machine learning course for GATE DA. So far we have reviewed the linear algebra and those are going to be helpful as we proceed further in this course. Next we are going to review the calculus and specifically we will have the review on the matrix calculus. We will be not going into the details of this matrix calculus, rather we will just have few concepts that are going to be come up further in this machine learning course, right? And I think you must be, before you proceed, you should have the knowledge of the single variable calculus. You should know how to take the derivative. You should know what is the geometrical interpretation of derivative, right? So you should have a good understanding of the single variable calculus, and also you should have the understanding of the multivariable calculus as well, right? So what we will do in this video, we will just have the review on the calculus, right? We will just be recalling few of the concept that are going to be helpful further in this machine learning course, right? So let's start with the today's lecture. अभी तक आप लोगों ने जो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ा, सो आई थिंक यू मस्ट बी नोन दैट व्हाट इज़ फंक्शन, राइट? अभी तक आपने सिंगल वेरिएबल कैलकुलस में जो पढ़ा, कोई भी फंक्शन आप के पास है तो वो जो फंक्शन है वो इनपुट ले रहा है, दैट दिस फंक्शन इज टेकिंग द इनपुट फ्रॉम सम रियल स्पेस, राइट? कोई भी फंक्शन जो है, अगर सिंगल वेरिएबल हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो इनपुट ले रहा है वो फ्रॉम द रियल स्पेस, और जब आप उसमें इनपुट दे रहे हो तो ये जो फंक्शन f है वो क्या कर रहा है, इनपुट लेने के बाद इसको मैप कर रहा है किसी ना किसी रियल वैल्यू पे, राइट? सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन यू हैव ऑलरेडी सीन इन सिंगल वेरिएबल कैलकुलस, राइट? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक्स स्क्वायर, राइट? सो ये जो फंक्शन f है, कोई भी इनपुट लेगा दैट विल बी फ्रॉम अ रियल स्पेस। जैसे कि अगर आप x इज इक्वल्स टू 2 ले लो, राइट? और जो इसका आउटपुट होगा दैट विल बी ऑल्सो अ नंबर, दैट इज अ रियल नंबर, राइट? सो this kind of function that maps from real space to real space we have already looked at, right? And we know how to take the derivative, first derivative, that is f dash x, and we also know how to take the second derivative, that is f double dash x, right? And so on. We also can take the third derivative and fourth derivative and so on, right? And you should also be aware that what is the geometrical interpretation of this first derivative. So it gives you the how function is changing, the rate of change, that is the slope, right? If you want to know that at a particular point that how the function is changing, you just need to calculate the slope at that particular point, right? And how do you find the slope? By taking the derivative of the function, right? So you should have the knowledge of the geometrical interpretation of what is the first derivative, what is the second derivative, all this thing, right? Now let me proceed further and let me talk more about the function. So we might have the function, let's suppose I am naming this function as f, right? That might take the input from d-dimensional space, right? That means it is taking the input as a vector, right? And after taking the input, it is mapping to a real number or to a real space. So ये किस टाइप का फंक्शन है? ये इस टाइप का फंक्शन है जो कि डी डायमेंशनल स्पेस से इनपुट ले रहा है किसी वेक्टर को, राइट? सो ये जो है आपका जो इनपुट है वो क्या है, एक वेक्टर है, और जो आउटपुट ये प्रोड्यूस कर रहा है
वो क्या है, एक रियल नंबर है। ऐसा आप मुझे कोई फंक्शन बता सकते हो? अगर आप लोगों ने प्रीवियस लीनियर अलजेब्रा का रिव्यू किया होगा या लीनियर अलजेब्रा आप पहले पढ़ चुके हो, देयर आर वेरियस सच काइंड ऑफ फंक्शन दैट टेक्स इनपुट एज अ वेक्टर एंड प्रोड्यूसेस अ रियल नंबर। सो अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो आप रिकॉल करो, जैसे कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। यहाँ पे x क्या है आपका, x जो है वो एक वेक्टर है दैट बिलोंग्स टू सम डी डायमेंशनल स्पेस। a क्या है, a जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड दिस स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ कांस्टेंट वन। तो आपने देखा होगा, इस आप रिकॉल करो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म जब पढ़ रहे होगे तो ये फॉर्म आपने देखा होगा, राइट? सो व्हाट इज दिस, दिस इज आउटपुट a टाइम्स x, दिस इज इनपुट। सो इसको आप एज अ डॉट प्रोडक्ट की तरह भी सोच सकते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट x डॉटेड विथ ax, राइट? अगर आप डॉट प्रोडक्ट को इस तरह से भी लिख सकते हो, x ट्रांसपोज ax, राइट? सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ओवरऑल क्या कर रहे हो, आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो विथ इनपुट वेक्टर एंड आउटपुट वेक्टर, तो आपको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा, यू विल गेट अ नंबर, राइट? सो इनपुट क्या दे रहे हो, x क्या है, x एक वेक्टर है जो कि डी डायमेंशनल स्पेस से बिलोंग कर रहा है। आउटपुट क्या मिल रहा है आपको, एक रियल नंबर मिल रहा है। तो इस टाइप के भी फंक्शंस हो सकते हैं, राइट? अब इस टाइप के फंक्शंस का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है या सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, देन how we are going to take the first derivative and second derivative of these kind of functions, right? और जब फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो वो आपको क्या बताएगा, सम किसी ना किसी तरह का फंक्शन का नेचर बताएगा, राइट? फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे तो रेट ऑफ चेंज बताएगा, सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो कर्वेचर का नेचर बताएगा, राइट? अब देखो, अब आपके पास किस तरह का भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन, लेट मी कॉल दैट फंक्शन एट एफ, जो कि किसी वेक्टर को इनपुट ले रहा है, लेट सपोज दैट वेक्टर इज फ्रॉम डी डायमेंशनल स्पेस, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी एक वेक्टर ही प्रोड्यूस कर रहा है। लेट सपोज करो कि मे बी पॉसिबली सम अनदर डायमेंशन स्पेस में ये जो है आउटपुट वेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स कॉल दिस मे बी पॉसिबल इन p dimensional space, right? So vector, so this function maps a vector in d dimensional space to a vector in p dimensional space, right? We might have this kind of function as well, right? अभी जैसे कि अगर आप फर्दर मशीन लर्निंग कोर्स में जाओगे तो यू विल सी दिस काइंड ऑफ फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क्स, उनके लेयर्स में आपको यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, right? And now how to take the derivative of such kind of function, how to take the second derivative of such kind of function. So what we are going to do, we are going to extend the idea, so we will just have a different view. So अभी तक आप फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव लेने के लिए क्या करते हो, आपने कुछ स्टैंडर्ड, जैसे कि अगर मैं इस केस में बात करूं तो आप लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलाज को याद कर लिया होगा कि पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव कैसे लेना है, लॉगरिथम है तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है तो उनका डेरिवेटिव क्या होता है, राइट? बट उनसे थोड़ा हम बैक जाएंगे, बैक मतलब हम लोग जो है बेसिक्स में जाएंगे कि एक्चुअली डेरिवेटिव होता क्या है, और हम लोग डेरिवेटिव को देखेंगे एज अ लीनियर ऑपरेशन और एज अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन, और उसका यूज करके हम लोग जो है एक यूनिफाइड वे प्रिपेयर करेंगे ताकि हम इस तरह के भी फंक्शन को सेम फ्रेमवर्क में एडजस्ट कर सकें। ओके, नाउ लेट मी give you let me give you the names of the first derivative or the second derivative, what we call the first derivative in this case, or the second derivative, and what we call the first derivative for this kind of function.
So here is the table. So we have already seen this kind of function, right, where the function maps from the real space to the real space, and we have various examples of this such kind of function, right? And by calculating the first derivative, what we got is the slope of the function, right? Or it tells you that how the rate of change of the function, right, at a particular point, right? So if you calculate the first derivative and try to find the first derivative of a function at a point, then that will be also a real number, right? And similarly for the second derivative tells you about the nature of the curve, right? You can just have the second derivative test and you can tell a lot about the single variable functions. So you are already familiar with this category, right? Now coming to this, where the function takes input as a vector and produces a real number, and there are various examples. We have already seen this kind of example, right? And in machine learning you will see the loss function that will fall in this category, where it will take the input as a vector and it will give you output that will be a real number, right? And the first derivative of such kind of function, what we call, is the gradient of the function, right? And you must be aware from the multivariable calculus that what is gradient. So gradient gives you the direction in which the function changes maximum. So basically it gives you the direction in which the function is changing maximum, right? And if you take the second derivative of such kind of function, that what we call is the Hessian, right? And this Hessian will also tell you a lot about the nature of the function, right? And let's suppose if you have a function that is a smooth function. A smooth function, I mean to say that it might not have any saddle point, then this Hessian would be a matrix, right? A square matrix, and if the function is smooth, then this Hessian turns out to be a symmetric matrix, right? And by looking at this, by finding the Hessian of a function, we can tell a lot about the nature of the function, right? If the Hessian of the function is positive semi-definite for all the input point x, then it means that the function is kind of a ball shape. I mean, it is convex. If you take some function and if you calculate the Hessian, and if it is negative definite or the negative semi-definite, then it is kind of the inverted ball shape, right? And if the Hessian of a function turns out to be indefinite, then the function will have the saddle points, right? So by finding this quantity, ultimately you will have the more infos about the nature of the function, right? Now if you have the function of this kind, where it takes the vector as an input and produces a vector, possibly some in another dimension, then such kind of function, that a times x, so a is here a matrix and this x is a vector, that is the input vector, right? So a times x, we have already seen, matrix times vector will give you a vector, right? So x is here vector, and if you take fx is equals to ax, then this fx will be, or that is a times x will be also a vector, right? So it takes the input as a vector and produces a vector that is possibly in some other dimension, right? So we have this kind of function that falls in this category. And also you will see in machine learning, in neural network, softmax is a kind of function that takes the input as a vector and produces output that will also be a vector, right? And if you take the first derivative of such kind of function, that what we call is the Jacobian, and it will also be a matrix,
right? And if you take the second derivative of such kind of function, that will be of some higher dimension tensor, but we are not that we will be not much discussing, and we will be not encountering such situations, right? So I think I have given you the idea that what we are going to discussing further. So the main goal is to just learn about finding the gradients, finding the Hessians, finding the Jacobians of the functions of the. Okay, now let's try to look at the derivative. So we will be looking at the basics of the derivative. We will be looking at the derivative as a linear operator, right? So let's suppose we have this function. So डेरिवेटिव क्या देता है आपको, किस टाइप का इंफॉर्मेशन देता है? अगर ज्योमेट्रिकली हम बात करें तो जैसे कि अगर आप इस फंक्शन एफ एक्स का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करो, दैट इज एफ डैश एक्स, so it will give you the slope of the tangent at a point, right? Slope of tangent. एज्यूम करो कि इस पॉइंट पे आप जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हो, देन what you will get is the slope of the tangent, right? एक चीज आप यहां पे ध्यान दो कि इस टेंजेंट लाइन को देखो और इस फंक्शन को देखो आप, तो इस पॉइंट के नियर ये जो x पॉइंट है उसके आसपास, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा इधर जाए या थोड़ा सा इधर जाए इस टेंजेंट पे ही, देन ये जो टेंजेंट है आप ऐसा बोल सकते हो कि जो डेरिवेटिव है वो इस किसी भी पॉइंट के नियर, अगर हम स्पेसिफिकली इस पॉइंट के नियर बात कर रहे हैं इस फंक्शन के बारे में, तो वो इस पॉइंट के आसपास में थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे हम तो इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करेगा। मतलब कि अगर फंक्शन का वैल्यू हम यहाँ पे देखें, दैट इज दिस रेड डॉट ऑन द रेड लाइन और ऑन द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो और एक्चुअल वैल्यू क्या है इस ये ब्लू वाले पे है, राइट? तो हम ये बोल रहे हैं ना कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देन दैट विल गिव यू linear approximation of a function near that point, right? So you can think of this derivative as a linear approximation of this function near any point x, right? अगर हमको इसको मैथमेटिकली लिखना है, जैसे कि देखो अगर मैं थोड़ा सा डेविएट करता हूँ, मतलब ये सिर्फ कितना दूर किस रेंज में अप्रॉक्सीमेट करेगा, तो नियर एक्स, जिस अगर आप यहाँ पे एक्स पे हो तो इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हो तो आप कुछ मत करो, एक छोटा सा टेंजेंट यहाँ पे इस पॉइंट के नियर में ड्रॉ कर दो। सो आप इस पॉइंट को क्या बोल सकते हो कि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ऑफ दिस फंक्शन। तो लेट्स एज्यूम करो कि हम x को थोड़ा सा डेविएट करते हैं, थोड़ा सा डेविएट करते हैं और हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, ट्राई टू फाइंड दैट x प्लस डेल्टा एक्स। सो इसको जो है हम x को नियर बाय चेक कर रहे हैं बाई इंक्रीमेंटिंग सम वैल्यू टू डेल्टा एक्स, राइट? सो फंक्शन कैसे चेंज करेगा, राइट? सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन जो है कैसे चेंज करेगा एट दिस पॉइंट, दैट इज x प्लस डेल्टा एक्स, राइट? सो इस पॉइंट पर अगर आप देखो this will be the approx value, right? And the actual value is on the blue curve,
right? And this is just a approx value. So at this point, what is the value? So we can write that is equal to fx प्लस इसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ. इंक्रीमेंट अगर आप देखोगे तो लेट मी शो यू दैट इंक्रीमेंट एज वेल. सो दिस दैट इज द डेल्टा वाई, राइट. पहले वैल्यू एक्स पे कितना था, ये था, दैट वाज एफ एक्स. और ये जो हम फाइंड कर रहे हैं एफ एक्स प्लस, मतलब इस पॉइंट पे, राइट. सो पहले ये एफ एक्स था, इस पॉइंट पे कितना का इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट हुआ, राइट. सो एफ एक्स प्लस सम टर्म, सो सम टर्म डेल्टा वाई. सो हम लोग जानते हैं डेरिवेटिव क्या होता है. अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स, दैट इज नथिंग बट इट टेल्स यू दैट अगर आप चेंज कर रहे हो एक्स में, थोड़ा चेंज कर रहे हो, तो फंक्शन जो है वो कैसे चेंज करेगा, वाई में क्या चेंजेज आएगा, या डेल्टा एफ लिखो या डेल्टा वाई लिखो आप. राइट. सो दिस डेल्टा वाई कैन बी रिटन एज एफ डैश एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स, राइट. अब ये जो मुझे आया है, ये जो वैल्यू आया, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट. आप एफ एक्स पे थे, एफ एक्स में आपने डेल्टा वाई जोड़ दिया, तो आप इस स्लोप रेड कर्व पे हो, राइट. यहाँ पे अभी आपको थोड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा ब्लू कर्व और रेड कर्व के बीच में, राइट. अगर इसको मुझे एग्जैक्टली इक्वल करना है, यहाँ पे अगर मुझे इसको एग्जैक्टली इक्वल करना होगा, तो देयर वुड बी सम अदर टर्म्स एज वेल, सम अदर टर्म्स, राइट. अब ये सम अदर टर्म्स जो होंगे वो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे, राइट. सो अभी आप इसको इस तरह से सोचो कि ये जो सम अदर टर्म्स है, दैट आर नथिंग बट जस्ट दिस एरर, राइट. और यू कैन से दिस करेक्शन, कि कितना मुझे करेक्ट करना पड़े ताकि मुझे ये यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड करना पड़े. अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा. और अदर वे भी है, इसको बाय यूजिंग द लिमिट हम लोग मैथमेटिक्स में इस अप्रॉक्सीमेट को इक्वल कर सकते हैं. अभी हम लोग फर्दर देखेंगे. बेसिकली ये जो सम अदर टर्म्स है ना, वो सम अदर टर्म्स जो होंगे वो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे. हायर ऑर्डर टर्म्स आई मीन टू से दैट डेल्टा एक्स स्क्वायर या डेल्टा एक्स क्यूब या डेल्टा एक्स टू द पावर 2.2 और समथिंग लाइक दैट, राइट. अभी हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूजिंग मैथमेटिक्स जो है इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है. ये तो समझ में आ गया कि कैसे इस चीज़ को हम लोगों ने लिखा, राइट. अब देखो, अब हम क्या करते हैं ना, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं. क्या करते हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं एक्स में, इसको हम इतना बड़ा इंक्रीमेंट ना करके, ये बड़ा नहीं एक्चुअली छोटा ही है, बट इसको हम इनफाइनाइटली स्मॉल जो है इंक्रीमेंट करेंगे. मतलब कि मैथमेटिक्स में इसको ही को हम बोलेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, मतलब बहुत ही छोटा माइन्यूट जो है इंक्रीमेंट करेंगे. तो ये जो एरर है ना, ये जो आपका सम अदर टर्म्स है जो कि इस करेक्शन को डिनोट कर रहा है, वो क्या होगा, जितना कम आप चेंजेस करोगे उतना आप कर्व के पास रहोगे. तो ये जो करेक्शन है ना, ये करेक्शन ऑलमोस्ट टेंड टू 0 होगा. तो ये करेक्शन जो होगा, अगर हम डेल्टा एक्स टेंड टू 0 करें, तो ये जो सम हायर ऑर्डर टर्म्स होगा ना, ये भी टेंड्स टू 0 होगा, राइट. सो यहाँ पे अब हम डेल्टा यूज ना करके, डेल्टा डिनोट करता है सम लिटिल बिट बिग चेंज, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियल नोटेशन, राइट. आपने पढ़ा होगा ये सब चीज़ कैलकुलस में, राइट. सो
instead of writing delta, we can just use the d, small d, that is the differential notation, right? सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर दें इस इक्वेशन को, तो दिस सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस some terms, some higher order terms, right? ये क्या हो जाएगा आपका? दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द फंक्शन दैट इज डेल्टा एफ, मतलब कि इस डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. ये आपका एफ एक्स हो गया एंड दिस विल बी द फंक्शन वैल्यू कैलकुलेटेड एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट? और ये जो चेंज हो गया, ये वाला चेंज, ये छोटा सा जो चेंज है, इसी को हम बोल रहे हैं चेंज इन द फंक्शन, राइट? सो डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स प्लस सम टर्म्स. अब अगर हम इस डेल्टा एक्स को टेंड्स टू जीरो करें, मतलब इन्फाइनाइटली स्मॉल, देन दिस हायर ऑर्डर टर्म्स जो है, सम टर्म्स जो कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब या एक्स टू द पावर 2.2 या एक्स टू द पावर 4 होगा, जितना हम एक्स को छोटा करेंगे उतना जो है ये इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो वी कैन राइट द सेम इक्वेशन इन डिफरेंशियल नोटेशन. So df is equals to f dash x टाइम्स dx, और ये जो अदर टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट हो जाएंगे, राइट? जितना हम x को छोटा करेंगे, राइट, मतलब ये जो इंक्रीमेंट ले रहे हैं हम, उसको हम बहुत नियर बाय x रखें, तो ये जो हायर ऑर्डर टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे? नेगलेक्ट हो जाएंगे, राइट? बिकॉज दैट विल बी वेरी माइन्यूट, राइट? एंड वी कैन इजली नेगलेक्ट दोज हायर ऑर्डर टर्म्स, राइट? सो अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट द you can think of this equation as here. So what we are doing here is the change in input, and by looking at the change in input we are looking at what will be the change in output. And you can think of this derivative, that is f dash x, as a linear operator, right? So डेरिवेटिव का इस टाइप का इंटरप्रिटेशन होना क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने डेरिवेटिव देखा होगा कि यू यूजुअली यूज टू डू दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू df अपॉन dx, राइट? सो इस dx को हम इस साइड क्यों नहीं ला रहे हैं अपॉन में? इसका एक ये रीज़न है कि अभी आपने देखा वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस जहाँ पे कि ये x जो है एक वेक्टर भी हो सकता है, राइट? और अगर हम वेक्टर या मैट्रिक्स, इट कुड बी इवन अ मैट्रिक्स, राइट, को डिवाइड करें, दैट डजंट मेक मच सेंस, right? So that is why we are having the view of the differentiation or view of the derivatives as a linear operator, right? So this is what derivative and this is what the differential, right? So you can think of the derivative as a linear operator, so that gives you that that tells you that अगर आप इनपुट को चेंज करोगे तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा. सो दैट इज काइंड ऑफ व्यू वी विल बी कैरिंग आउट, एंड वी विल ट्राई टू लर्न दैट हाउ टू take the derivative of such kind of functions in next video.
दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको अभी मैं ये सारे लेक्चर्स के नोट्स जो है वो हमारे वेबसाइट पे मैं अटैच्ड करना स्टार्ट कर दूंगा. एंड ऑल्सो आई विल बी क्रिएटिंग द प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इन एमएल पार्ट एज वेल. राइट, हम लोगों ने ऑलरेडी मैथमेटिक्स का सारा चीज़ कवर कर दिया है. सारा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं वो सारे अटैच कर दिए गए हैं. एंड दोज आर वेरी गुड क्वेश्चन. जो अटैम्प्ट कर रहे हैं उनको पता चल रहा होगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव पुट देयर. राइट, सिमिलरली सेम पैटर्न जो होगा वो मशीन लर्निंग के लिए भी हम लोग फॉलो करेंगे. अभी उसमें कोई भी नोट्स अटैच नहीं है, बट नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी अटैचिंग द नोट्स एंड द अटैचिंग द ऑल द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एज वेल चैप्टर वाइज. राइट, okay, that is all in this video. Thank you so much.